संकरी रास्तों से होता हुआ जो है एकदम अंदर की तरफ आ गया है। देखिए यहाँ पर आपको मिट्टी के जो है वो घर बने हुए दिखाई देंगे। महिलाओं से बात करेंगे, आप बात करेंगे? कथा बोलबेन ना। আপনার নাম? বাসন্তী উত্থাসিনী। কত বয়স হবে আপনার? আমার কত 65 আর হবে। ছুটি সামনে ভোট রয়েছে, মমতা না শুভেন্দু অধিকারী? মমতাইকে ভোট দেইছি দুবো। হ্যাঁ মমতাকে? কেন যদি জিজ্ঞাসা করি? যে কেন এখন আমাকে পুকুর খুলিয়া দিবে গেছিল, দেয়নি। আমাকে অনেক কিছু দিবে গেছিল, দেয়নি। আমফান হয়ে গেল, ঘর ভেঙে গেল, স্কুলে রইলি, কিন্তু তাও বলছেন যে তবু মমতাকে দেবো। একটা লোক কথা কয়, তারপরে আমার কিছু দেয়নি, তবু মমতাকে দেবো। কেন? আমার তাকেও ভালো লাগে। মমতাকে ভালো লাগে? হ্যাঁ। কি দেখে ভালো লাগে মমতা? আর কি দেখে, দিদি আমি দিদি, সে দিদি, দু দিদি, আচ্ছা এই জন্য মমতাকে ভালো লাগে। কাজ হয়েছে কিছু এখানে 5 বছরে? কইলে পুকুর খুলে দিবে গেছিল, দেয়নি। ঘর ভাঙিয়ে দিল, ঘর দেয়নি, তবু কিন্তু মমতাকে দেবো ভোট। স্বাস্থ্য সাথীর খুব প্রচার হচ্ছে। হ্যাঁ, কার্ড পেয়েছেন? কোনো পাইনি। স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড পাইনি আপনার? না, তবু কিন্তু মমতাকে দেবো। কেননা তাকে তবু রাখতে হবে, আরও যদি কিছু নিচে নামতে হয় তাকেই রাখতে হবে। লাঠি যেখানে হারিয়েছে সেইখানে খুঁজবো। শুভেন্দু অধিকারী আগে টিএমসিতে ছিলেন, এখন বিজেপিতে চলে गए। हाँ, ওই জন্য 2 নম্বরই করে রে। ममता दीदी पर इनकी काफ़ी श्रद्धा है, जैसा कि ये बात कर रहे हैं कि हालांकि ये नाराज़गी भी जाहिर कर रही हैं कि बहुत कुछ इन्हें नहीं मिला है। मैंने स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में भी पूछा, काफ़ी प्रचार हुआ है, वो आप देख सकते हैं तमाम तरीके के विज्ञापन अखबारों में दिए गए और चुनाव से ठीक पहले काफ़ी इसका प्रचार हुआ। दुआरे सरकार जैसा कि आप जानते हैं कैंपेन था ममता बनर्जी। कुछ महिलाएं सड़क से जा रही हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नामटा কি? আমার নাম কিশোরী প্রধান। এখানেই বাড়ি আপনার? হ্যাঁ, এখানেই বাড়ি। কি কাজ করেন? আমি ওই শ্রমিকের কাজ করি। এখানে কোথায় বাড়ি আপনার? এই তো, আচ্ছা এটা গাংড়া। পাশেই বাড়ি আপনার? হ্যাঁ। মমতা না শুভেন্দু অধিকারী? এটা শুভেন্দু অধিকারীকে দিতে আমার ভালো লাগে। শুভেন্দু অধিকারী? হ্যাঁ। মমতা কেন না? কেন, আমাদের এই যে আমফান ঝড়ে পয়সা দেয় না, আর কিছু দেয়নি আমাকে। আমফানে কিছু টাকা পাননি? না, আমাদের কিছু দেয়নি। কি ক্ষতি হয়েছিল আমফানে? আমফানে আমাদের বাড়ি চালে চাল উড়ে পড়েছিল। তারপরে নিজের ব্যবস্থা করেছেন? হ্যাঁ, আমরা নিজে ব্যবস্থা করেছি, আমাকে কিছু দেয়নি। তো 5 বছরে কোনো কাজ হয়নি না। এখানে ঠিকভাবে? না, আমাদের বাড়িতে হয় না, আর অন্যান্য লোকেদের দিয়েছে। সরকারের থেকে কিছু সাহায্য? না, কিছু পাই না। সরকার একটা পলিথিন দিয়েছিল, সেটা ফাটাতে আবার এখানে উপপ্রধান ছিল কালীকৃষ্ণবাবু, বলেছিলাম ফেরত দিবে বলে, আর দেয় না। সরকার তো বলছিল যে আমফানে ঝড়ে যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের সাহায্য করা হয়েছে, না টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা পাই না। আমাকে টাকা দেয়, কে পেয়ে না, আমি টাকা পাই না। পাননি কিছু? না। আপনার নাম? আমার নাম শান্তি মান্না, ওনার স্ত্রী। আগে ভোট রয়েছে, কি মনে করছেন, কি দেখছেন? কি মনে করছে, কি সারা জীবন দিয়ে আসছি, কিন্তু আমাদের কোনো উপশম পাইনি, কোনো সাহায্য আমরা কারোর কাছে, শুধু ও কি কারোর কাছে না, যত দল আসুক না কারোর কাছে আমরা কোনোদিন পাইনি। সারা জীবন মানে খাটি খাই, ভূপাল বাবু ছিল সেই দিকে করছে। এই আমাদের দুঃখ। আর কিছু উন্নয়নের কোনো কাজ হয়নি এলাকায়? না, না সবাই হচ্ছে, রাস্তাঘাট হচ্ছে, সব কিছু হচ্ছে, কিন্তু আমাদের লোকেদের জন্য হ্যাঁ হচ্ছে, কিন্তু আমার পরিবার, আমার 3 সন্তানও আছে, তাদেরও কিছু নেই, আর আমিও যে বুড়া হেয়ালি, আমারও কিছু। নিচতলা লোক সব কিছু শেষ করে দিচ্ছে, আমাদের এই নিচতলা লোক তবে খেয়ে নিচ্ছে, তাদের ঘর তুমি চলে যাও, তাদের ঘর তৈরি ঢালাই রাস্তা, তাদের ঘরে চাকরি 5-6 জনের চাকরি, কিন্তু আমাদের এখানে কি চাকরি করার লোক নেই? ঘাটার স্কুলে, বিপি স্কুলে সব চাকরি তাদেরই লোক পাচ্ছে, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী লোক পাচ্ছে না। কেন? মমতা দিদি সব কিছু দিচ্ছে, কিন্তু আমার দেশের জনগণকে খেয়ে নিচ্ছে। আর রাস্তাঘাট, স্কুল বা এই যে ছোটো ছোটো বাচ্চা, এদের যে পড়াশোনা কি করতেছে আমার দেশের লোক। रास्ता देखिए, कैमरा पर्सन ज़रा इधर भी दिखाइए ज़रा। ये देखिए, ये जो है बिजली का खंभा जो होता है, जो आमतौर पर आप देखते हैं कई इलाकों में लगा होता है, उस बिजली के खंभे को ये जो एक खाई बनी हुई है उसको जोड़ के बनाया गया है, ताकि लोग जो है
उन घरों तक पहुंच पाए जिनके इलाके हैं। ये कह रही हैं कि हम इनसे बात कर रहे थे, ये कह रही हैं कि ये 10 साल से आवेदन कर रही है, लेकिन आज तक इस रास्ते का ना निर्माण हुआ, ना कभी कोशिश हुई इसको करने की, और हमेशा से यही चला आ रहा है। बारिश के वक्त जो हालात ऐसे हो जाते हैं कि इस रास्ता से जो है वो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। नंदीग्राम के सोनाचूड़ी इलाके में हम पहुँचे हैं, हमारी टीम पहुँची है, और हालात ये है कि हमें गाड़ी जो है बहुत दूर पर रखनी पड़ी है और वहाँ से हमें पैदल आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो गांव वालों ने बोला कि यहाँ से भैया सड़क इतनी ख़राब है कि आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते। और देख लीजिए इसी हालातों में हम लोग अंदर घुस रहे हैं और चाहते हैं हम लोग कि लोगों से बात हो सके और उनका मिजाज हम राजनीतिक तौर पर जान सके। ममता बनर्जी ना शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी। देखिए यहीं पर जो है तरह तरह के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिंटू मंडल। यहीं के रहने वाले हैं? नंदीग्राम के? नंदीग्राम, बचपन से यहीं पर रहे हैं? यहीं पे। क्या कहना चाहेंगे, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी? नहीं, देखिए शुभेंदु अधिकारी को देख के भी नहीं है, ममता को नहीं है, मोदी सरकार को देख के देना। मोदी को देख? मोदी सरकार को देख के देना है। मोदी सरकार अच्छा काम किया है, मोदी को ही देना है। मतलब मतलब केंद्र से राज्य में भी लाना है? हाँ, और राज्य में जो है जो आएगा वो मान लेंगे, लेकिन मोदी सरकार के सपोर्ट में आएगा। कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे आम फाम झड़ हुआ है। अब देखिए सब टूट गया था, इनके लिए कोई हम लोग को कुछ नहीं मिला, एक तिरपल तक नहीं मिला। ये घर का पूरा जो छप्पर है उड़ गया था, देख सकते हैं, वह नहीं मिला। वोट देने भी नहीं जाने देते हैं? ना, देने नहीं जाने जाते हैं, रास्ता रुकता है तारपर हम लोग को तो कुछ मिला ही नहीं है। आज 30 साल हम लोग का विधवा है, कोनो विधवा भाता नहीं है, तारपरे ये घर भी नहीं है, और मैंने बोलने जाता है तो बोलता है से होगा 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 बोल के ही चला जाता है। नेता लोग का घर में दौड़ाते दिन चला जाता है। वो आज 2 साल का बाद हम आया घर में, लॉकडाउन का बाद, और हम लोग बांग्ला में कार्तिक महीना में हम घर आया हुआ। 2 साल तक बेंगलोर में काम कर रहे थे? हाँ, काम मिलता नहीं था, बैठा हुआ था, कल मिलता नहीं था, बैठा था। दूसरा लोग के घर में खाना खाया, जे 2 काम मिला तो वो पैसा कमा के दूसरा लोग को दे देने पड़ते था। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों के लिए यहाँ पर नंदीग्राम में क्या हो जिससे आप लोगों का जीवन बेहतर हो? हम लोग चाहते हैं थोड़ा हम लोग नंदीग्राम में गोटे काम हो, हम लोग कमाई खाई, हम लोग बाहर नहीं जाए, बाहर लोग के पिटा नहीं खाई। मारता है बाबू लोग, मारता है, पैसा वाला लोग मारता है, झूठ मूठ चोरी दुर्नाम दे देता है, दिया जेल खाना में घुसा देता है, देखे पुलिस के देके मार खड़ाता है। था आई तो कुछ दिन आगे एक लड़की को झूठ मूठ मैंने मारा, पुलिस देके मारा, देके थाना में भेज दिया, उसको 3-4 दिन इतना मारा, शुद्ध सांसटा ले रहा जा रहा था, सर्वस्वरी कुछ नहीं, से लड़की का सर्वस्वरी कुछ नहीं, इतना मारा, से मारा देख के भय घर में चला आया। क्या बंगाल की यही तस्वीर है? विकास विकास विकास, हर चुनाव में विकास आता है, हर चुनाव में जय श्री राम, हर चुनाव में जय हिंद का नारा लगता है। क्या यही चुनाव? ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को आना चाहिए और इनसे बात करना चाहिए। यही बंगाल का गौरव है, यही सोनार बांग्ला है, जहाँ पर एक औरत दूसरे किसी राज्य में जाकर काम करती है और वो कहती है कि अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना कोई चारा नहीं है, पेट में खाने के लिए अन्न नहीं है। यही बंगाल है, यही सोनार बांग्ला है। हर राजनीतिक पार्टी का नारा है सोनार बांग्ला बनाएंगे। आइए ज़रा नंदीग्राम में देखिए सोनार बांग्ला किसको कहते हैं। सोनार बांग्ला मुर्गी पालन भी यहाँ के लोग करते हैं और ये बहुत अंदर तक आना पड़ेगा इस तस्वीर को आपको देखने के लिए। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर देख सकते हैं आप, खेत आपको दिखाई देंगे, पूरा ग्रामीण इलाका है जहाँ पर स्थानीय जो किसान है वो खुद उगाते भी हैं और इसी से इनकी जीविका भी चलती है। देखिए एक और शख्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से, हम उनके पास भी जाएंगे और बात करेंगे। आराम फरमा रहे हैं। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गणेश मंडल। गणेश मंडल। कितनी उम्र हो गई आपकी? नियरेस्ट 80 साल। हाँ, 2 साल बाकी है। 2 साल बाकी है। 80 साल में आप तो समझिए कि
आज़ादी मतलब बंगाल को तब से देखते हैं। हाँ हाँ तब से देखते हैं। हाँ हाँ। क्या देखा, क्या बदला? सिर्फ देश में नहीं, बंगाल बन पाया क्या सोनार बांग्ला, जिसको बोलते हैं कि हर राजनीतिक देखिए, दल आज हम सोनार लोग- बांग्ला बनाना चाहता है, हम कुछ लोग- बदला? हम लोग आम तो कांग्रेसी जमाना देखा, ओ उसके बाद सीपीएम आया, सीपीएम आया, टीएमसी है, अभी सीपीएम से वह सब आदमी इधर में सब सीपीएम ही सब करता सीपीएम था। का करता था। लेकिन सब आदमी चाहता था कि थोड़ा कुछ बदल आएगा, और ये बोला था कि कुछ बदलने के लिए ममता जी ने, तो बहुत दुख का बात है, कुछ बदला नहीं कुछ है, बदलाव नहीं आया, बदलाव परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, कुछ नहीं आया, मतलब टीएमसी को आप लोग ये सोचकर लाए थे कि आप लोगों का जीवन बदलेगा, बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लेकिन टीएमसी से भी निराशा है आप लोगों को। सब निराशा है, और बहुत निराशा है। हम लोग सब यहाँ का जितना आदमी है सब तो आंदोलन किया था बदलने के लिए, नंदीग्राम का जो भूमि आंदोलन हुआ। भूमि आंदोलन, लेकिन कुछ बदल नहीं आया। फिर उसके बाद में तो हम लोग सब शांति मिছিল में गया था। देखिए भूमि आंदोलन यहाँ का हर एक आदमी, कोई भी बच्चा हो, औरत हो, कोई भी, सब आदमी भूमि, अपना भूमि खेती है, ये माँ का माँ है, माँ को रक्षा करने के लिए सब इकट्ठा हुआ था। हाँ, और सोचा था कुछ परिवर्तन आएगा, तो हम लोग का इतना कोई परिवर्तन है, हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। हम तो डैमेज हो गया, हमारा मेरुदंड भांगा है, ये भी ऑपरेशन हुआ है। तो चोरी जब करेंगे तो घर से निकाल देना चाहिए। अपना लड़का जब घर में चोरी करेगा उसको तो घर से निकाल देना चाहिए। हाँ, चोरी- ये बात सही कहा इन्होंने कि अगर टीएमसी जो है, अगर ये मानती थी कि वो चोर है, तो उन्हें पहले ही पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ये बात पहले भी राजनीतिक विश्लेषकों ने कही थी और बात भी उठी थी, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी खुद से निकले हैं वहाँ से इस्तीफ़ा देकर, और वो फिर बाद में बीजेपी में चलेगा। ये एक तर्क है, ये टीएमसी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब भी होना चाहिए। और मैं अगर मिलता हूँ किसी टीएमसी नेता से तो मैं वो पूछूंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी। बाकी आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम पहले यहाँ भाजपा का फ्लैग उठाया, यही सोनाचूड़ा, नंदीग्राम सोनाचूड़ा पहले, सबसे पहले फर्स्ट एकदम एक नंबर। यहाँ विश्व हिंदू परिषद का स्थापन किया है, आरएस का स्थापन किया है, इसीलिए हमको कुछ नहीं मिलेगा। आप तो बीजेपी आरएसएस के आदमी हैं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बीजेपी आएगी इस बार या नहीं आएगी? बीजेपी आएंगे, नरेंद्र मोदी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी तो टक्कर देने के लिए भवानीपुर से नंदीग्राम आ गई है। आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो उनसे टक्कर ले पाएंगे? हाँ, टक्कर लेगा, मैं नरेंद्र मोदी टक्कर लेगा, जीतेंगे। और अभी जीता है सरकार में सब, मतलब बीजेपी आएगी आपके? हाँ हाँ। इसी के साथ इसका अंत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नंदीग्राम मैंने कुछ भी नहीं घूमा है। नंदीग्राम को अगर पूरा कवर करने लग जाऊं तो महीना बीत जाएगा, लेकिन नंदीग्राम की कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी और ना कभी ख़त्म हो सकती है। नंदीग्राम अपने अंदर तमाम इतिहासों को समेटे हुआ है। नंदीग्राम अपना वर्तमान समेटे हुए है, और नंदीग्राम कई लोगों से बना हुआ है। नंदीग्राम किसानों से बना हुआ है, नंदीग्राम भूमि आंदोलन से बना हुआ है। नंदीग्राम ने सब कुछ देखा है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है किरण, मैं रोहित झा, नंदीग्राम से CN राष्ट्रीय के लिए। शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे।